Welcome back, students. Today we continue to our topic transportation in human beings. In previous class we have discussed about blood and blood vessels. In blood vessels we studied arteries, vein and capillaries. Now we studied heart and blood circulations. Blood circulations are also known as cardiac circulation, cardiac cycle. Now the question is, what is heart? Heart is a pumping organ or muscular organ. Heart is a pumping organ or muscular organ. The actual definition is muscular pumping organ that pumps out the blood into blood vessels is called heart. हार्ट के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा और पंपिंग की प्रोसेस जो है वो हार्ट के अंदर रहेगी. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ हार्ट, देन द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी. स्टडी ऑफ हार्ट आर नोन एज कार्डियोलॉजी. Cardiology. And one more important point is blood circulation or cardiac cycle is given by William Harvey. Or cardiac cycle is given by William Harvey. William Harvey. These are two important points of heart. Next, we discuss about the structure of heart. Then the shape of heart. First question is shape of heart. Normally we draw the shape like that, but this is not actual shape of heart. This is the not actual shape of heart. The actual shape of heart is fist. Fish shape heart. Our heart is fish shape. Fish shape. Now, if we talk about the heart, then there are four chambers in the heart. There are four chambers in the heart. And this is the septum. This is the septum. The above two chambers are called auricle. Our above two chambers are called auricle. And the bottom two chambers are called ventricle. Ventricle. Heart is present or this side means left side. So this is the right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. Now there are three valves. There are three valves in the right side of the heart. The right side of the heart, three valves present.
is called tricuspid valves. Tricuspid valve. And there are two valves in the left side of heart. They are known as bicuspid valve. Bicuspid valve. And the right ventricle consists of succinate valve. This is known as semilunar valve. This is known as semilunar valve. An artery attached with this semilunar valve are known as pulmonary artery. This is pulmonary artery. Here, two vena cava are present. We know very well the largest vein is vena cava, and these two vena cava are present in right auricle. Upper vena cava is known as superior vena cava, and this is inferior vena cava. In this vena cava, blood comes from the upper part of the chest. चेस्ट के अपर ऑर्गन्स जितने भी हैं उन सबका जो ब्लड होगा वो कहाँ फ्लो होगा? सुपीरियर वेना कवा के थ्रू कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल के अंदर. और बिलो द चेस्ट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स, तो उन ऑर्गन्स का ब्लड जो चेस्ट के नीचे हैं उन सबका ब्लड इंफीरियर वेना कवा के थ्रू किसके अंदर आएगा? राइट ऑरिकल के अंदर आएगा. राइट. एंड one largest artery we are known as aorta. We also know aorta. Aorta is present of left ventricle. Aorta or aorta. And this is the aorta valve. This is the aorta valve. One more important point is the right side of heart. हार्ट के राइट साइड में जो रहेगा हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा. इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन द राइट साइड ऑफ हार्ट. सो इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? CO2. And the left side of heart, pure blood. यहां कौन सा ब्लड रहेगा? प्योर ब्लड रहेगा. इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड और O2. दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. नाउ वी डिस्कस अबाउट cardiac cycle or blood circulations. If we talk about the functions of arteries or pulmonary arteries, then we say the pulmonary artery carry impure blood to the lungs. Artery impure blood को lungs तक लेकर जाने का वर्क करती है. carry impure lungs to blood to lungs. Next,
body organ and lungs. We know very well lungs functions. lungs का क्या फंक्शन रहता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन. लंग्स क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का वर्क करता है. इट मीन्स O2 in and CO2 out. O2 in and CO2 out. Next, first of all, blood goes to right or ankle from organs. organ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा? राइट और एकल के अंदर आएगा. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू द अपर बॉडी पार्ट ऑफ चेस्ट. चेस्ट के अपर बॉडी पार्ट का जितना भी ब्लड होगा वो किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू. एंड जो चेस्ट के नीचे के बॉडी पार्ट हैं उनका ब्लड किसके थ्रू आएगा? इंफीरियर वेना कावा के थ्रू. कहाँ आएगा? राइट और एकल के अंदर. और यहां ब्लड जो था वो कैसा रहेगा? इम्प्योर ब्लड. It means CO2 deoxygenated blood. What is the reason of behind that impure blood? We know very well कि अपनी बॉडी के हर एक सेल्स के पास क्या प्रेजेंट रहता है? ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है जब अपने फूड टेकन करते हैं उस समय. नाउ फूड फॉर्मूला इज C6H12O6. When O2 comes here, O2 क्या करेगा? इस ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा. ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन करेगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? CO2 प्लस वाटर प्लस ATP मीन्स एनर्जी की फॉर्मेशन करेगा. इस एनर्जी को यूज कौन कर लेगा? अपनी बॉडी की सेल्स. इस एनर्जी को तो अपनी बॉडी की सेल्स यूज कर लेंगी. वाटर अपने बॉडी के अंदर होता है. नेक्स्ट जो बचा है CO2. कौन? जो CO2 है वो ऑर्गन से इन सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आ जाएगा? राइट और एकल के अंदर. राइट और एकल से जब राइट और एकल की कैपेसिटी फुल हो जाएगी ब्लड की तो ब्लड जो होगा इन ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ कहाँ आएगा? कम्स इनटू राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल. हियर वी सी deoxygenated blood and here also deoxygenated blood. Now the impure blood carried by pulmonary artery and pulmonary arteries carrier impure blood to the lungs. अब यहाँ से जो ब्लड होगा वो कहाँ रीच करेगा? लंग्स के अंदर. और यहाँ से जो ब्लड हुआ वो कैसा हुआ? इम्प्योर ब्लड. In previous lecture we have also discussed about the arteries. In arteries always flow pure blood, but the pulmonary artery are the exceptions. It means pulmonary artery के अंदर हमेशा कैसा ब्लड था? impure blood flow हो रहा था. Now here the process of blood purification. The process of blood purification. lungs के अंदर क्या होगा? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा. तो CO2 तो बॉडी से बाहर आउट कर दी जाएगी और O2 क्या होगा? इन कर लिया जाएगा लंग्स के थ्रू. नाउ लंग्स से ब्लड को कैरी कौन करेगा? प्योर ब्लड है पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड टू द लेफ्ट ऑरिकल. अब यहां से जो ब्लड होगा वो कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर. और ब्लड कैसा हुआ? ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड. किसके थ्रू आया? तो पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. नाउ द ब्लड गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल और कम्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. अब बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू क्या होगा? यही ब्लड जो होगा
वो एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट है? आयोटा। किस वाल्व के थ्रू? अरोटा वाल्व के थ्रू। नाउ ब्लड गोज इनटू अरोटा एंड अरोटा से क्या होगा? स्मॉल स्मॉल आर्टरीज क्या होगी? निकलेंगी कुछ इस तरीके से। तो इन्हीं आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड होगा वो वापिस कहाँ एंटर करेगा? ऑर्गन्स के अंदर। Now here the oxygenated blood again goes into organ. ब्लड कैसा है यहाँ पे? प्योर। मीन्स O2 वापिस कहाँ तक पहुंची? ऑर्गन्स तक। अब ऑर्गन इसको वापिस से यूज करेगा किसके लिए? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। और सेम प्रोसेस क्या होगी? रिपीट होगी। सो वी से the circulation type of in human beings are double circulation. Hope so you understand very well. If you have any query then contact me. Now एक बार मैं हिंदी के अंदर पूरा रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ऑर्गन से जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड वो कहाँ आता है? राइट ओरेकल के अंदर आता है। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। अपर वेना कावा यानी ऊपर की वेना कावा जो होती है वो कैसी होती है? सुपीरियर। और लोअर जो होती है कौन सी? इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कावा के अंदर जो ब्लड आता है वो चेस्ट से ऊपर जितने भी बॉडी पार्ट्स है लाइक दैट ब्रेन, तो वो ब्लड सारा कहाँ आएगा? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। एंड चेस्ट के नीचे का जो पार्ट का जो ब्लड है, जितने भी ऑर्गन हैं उन सब का ब्लड जो है वो कहाँ आएगा? किसके थ्रू आएगा? इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, राइट ओरेकल में। जब राइट ओरेकल की कैपेसिटी फुल हो जाएगी ब्लड की, तब ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड एंटर करेगा कहाँ? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल के अंदर मैंने बताया कि क्या प्रेजेंट रहता है? सेमी ल्यूनर वाल्व। इस सेमी ल्यूनर वाल्व से कौन कनेक्ट होता है? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी कैरीज करेगी इस ब्लड को। मींस यहाँ इम्प्योर ब्लड जो है उसको कैरी किसने किया? पल्मोनरी आर्टरी ने। और कहाँ सेंड कर दिया उसको? लंग्स तक। तो अब ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आ चुका? लंग्स। लंग्स क्या वर्क करता है? लंग्स वर्क करता है ब्लड प्यूरिफिकेशन का। इट मीन्स O2 इन एंड CO2 आउट। O2 को तो क्या करेगा? बॉडी के अंदर लेगा और CO2 क्या करेगा? बाहर कर देगा। नेक्स्ट, लंग्स से जो प्योर ब्लड है कहाँ आएगा? लेफ्ट ओरेकल के अंदर आएगा। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट ओरेकल से जो ब्लड होगा बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अटैच रहती है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट आर्टरीज दैट इज अरोटा। अरोटा के थ्रू क्या होगा? स्मॉल स्मॉल आर्टरीज से होता है। यही प्योर ब्लड जो है वापिस से कहाँ पहुँच जाएगा? ऑर्गन्स के अंदर। और जब यहाँ O2 पहुंच चुकी है मींस प्योर ब्लड पहुंच चुका है। प्योर ब्लड के अंदर क्या होती है? O2। तो O2 क्या करेगी? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी। वापिस से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? CO2 और ATP। ATP जो है बॉडी की सेल्स के द्वारा यूज कर लिया जाएगा और CO2 वापिस कहाँ आ जाएगी? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर। कई बार क्या होता है एग्जाम्स के अंदर फ्लो चार्ट पूछ लिया जाता है ब्लड सर्कुलेशन का। नाउ वी ड्रॉ हेयर ए फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। Now we draw a flow chart of blood circulation. First of all, organ. Organ. यहाँ क्या आपने देखा? We have seen here glucose breakdown with the help of O2 and formed CO2 plus H2O plus ATP
ATP consumed by the body cells and CO2 sent to right आर्टरी। अब मैं यहाँ राइट ऑरिकल जो है मीन्स राइट ऑरिकल, मैं यहाँ शॉर्ट के अंदर एक नाम लिखूँगा राइट ऑरिकल। ब्लड कम्स टू राइट ऑरिकल। ब्लड कहाँ आ चुका है? राइट ऑरिकल के अंदर। कैसा ब्लड था यहाँ पे? इम्प्योर ब्लड। किसके थ्रू आया? ठीक है, नाउ आया जो था वो आया था सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। इट मीन्स वेना कावा एंड राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। ब्लड गोज इन टू राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू आया था? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। कैसा ब्लड था यहाँ पे? तो इम्प्योर ब्लड। राइट ऑरिकल से ब्लड गया था किसके अंदर? लंग्स के अंदर। ब्लड, impure blood with the help of pulmonary vein, pulmonary artery की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट, लंग्स के अंदर क्या हुआ? ब्लड प्यूरिफिकेशन। इट मीन्स O2 in and CO2 out with the help of windpipe और रेस्पिरेटरी पाइप। लंग से ब्लड गया था कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मीन्स प्योर ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ब्लड कैसा? प्योर ब्लड। और यहाँ से किसकी हेल्प से? एरोटा और आर्टरीज। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। वापिस कहाँ आ चुका है? ऑर्गन में। सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और डबल ब्लड सर्कुलेशंस। थर्ड, दिस होल ब्लड साइकिल goes on. Hope so you understand transportation in human beings. If you like my video, then press bell icon and share my YouTube channel and subscribe also. Thank you and have a nice day.